So up till yesterday, day three, we have covered, why serialized management, all the masters, be that product master, category, combo, tax, zones, bins, customer, vendor master. We also saw how mappings and listings work. Then we understood different USN types, the category one, category two, up till USN type five. We understood how auto adjustments work with serialized inventory, why we need to block paper pick list. We checked out how printers and the barcodes can be configured into the system. And then we started with the inverting process, which was with PO creation, completing the GRNs, how to do direct GRN in USN 5, how can we separate out QC from the GRN and then do the QC from the web. We also checked out put away, how we can do the put away from good and bad put away zones. And then we started with the outward. So in outward, so far we have gone through how packing station has to be configured, how the printers on the packing station have to be configured, and then we also understood how the batches can be created manually. Yesterday we also covered how batches can be created automatically through wave creation, be that express wave or standard wave. So I'm sure this batch creation must have been something new for you. Uh, any questions so far? Anything which you have not been able to understand on how automatic batches are created or how the waves can be configured? If no, kindly please type no's into your chat boxes so that I can understand you guys are with me. So I see no no's. That means people have questions. Guys, please ask your questions. Then before I move ahead, I either want a no from you or I want to have some questions from you. And now we move ahead, and then you are sort of stuck with the concepts. Great. So we have a couple of no's, and I believe rest of the people are either driving or in middle of some other meetings or whatever it is. Let's continue with today's session. So what we'll be doing today is we'll be doing order processing of B2C. For order processing of B2C, we'll be doing it actually into our warehouse, which we have in our office. We'll be creating some orders, the orders which we have into our panel. We'll be doing actual picking, actual packing, and so on. So I would request Shahrukh to please take it forward. You can start from pick list creation, how it becomes visible on the device, and then order processing as well. I would request Kushagra, if you are there, you can also switch on your camera of your mobile phone to show some processes when Shahrukh is processing them by muting your microphone and speaker. Shahrukh, please, over to you. Yes, sir. I'm sharing my screen where I can show you the order batches which are automatically created. क्योंकि हमारे इस अकाउंट में वेब पिकिंग इनेबल्ड है. तो यहाँ पे अभी आपको जो स्क्रीन विजिबल है वहाँ पे आपको दो बैचेस दिख रहे होंगे जिसमें ये स्टैंडर्ड वेव के थ्रू बने हैं. ठीक है, यहाँ पे दो पिक लिस्ट इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे एक में मल्टी ऑर्डर आइटम था और एक में सिंगल सिंगल आइटम थे, तो मल्टी ऑर्डर आइटम के लिए अलग बैच बना दी गई है. ठीक है, फिर यहाँ पे मैं पिकर सेलेक्ट करूंगा. यहाँ पे यहाँ पे दो पिकर दिख रहे हैं, हृदय जी एंड इंसिरको शाहरुख. यहाँ पे मैं ये पिकर सेलेक्ट कर दूंगा. ठीक है, बाकी ऑर्डर प्रोसेस्ड हैं, सिर्फ ये दोनों बैच ओपन है. यहाँ पे अभी अनकन्फर्म में एक दिख रहा है, पे अनकन्फर्म में दो दिख रहे हैं.
देयर इज वन मोर थिंग जहाँ पे कंसर्न आता है लोगों का, ये बैच लॉक हो गया है जी, अंदर और ऑर्डर्स ऐड नहीं कर सकते, तो शाहरुख बैच लॉक कब हो जाता है? सर नॉर्मली अगर आपका वेब पिकिंग इनेबल नहीं है तो बैच लॉक आपका जब आप ऑर्डर कंफर्म कर देते हो तब हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बैच क्रिएशन है, तो यहाँ पे आपको मैनुअली बैच में ऑर्डर ऐड करने नहीं देगा, इसलिए ये लॉक हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि हमको ये भी समझना चाहिए कि ऑर्डर कंफर्म करने का मतलब क्या है, राइट? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। देखिए, ऑर्डर कंफर्म करने का मतलब होता है कि आपने मार्केट प्लेस को बता दिया कि यस आई कैन प्रोसेस दिस ऑर्डर एंड आई एम गोइंग टू शिप बैक एंड शिप दिस ऑर्डर। हर एक मार्केट प्लेस का कंफर्म करने का स्टेप और कंफर्म करने का प्रोसेस अलग होता है, बट since you are using EasyCom, it has been standardized for you. For you, it is simply a click of a button called confirm when you complete the picking, or if you are using the web. फ्लिपकार्ट के केस में इसका मतलब होता है कि हमने उसका इनवॉइस जनरेट करवा लिया मार्केट प्लेस से कंफर्म करते से, और उनसे शिपमेंट का लेबल मांग लिया, बट हमने आरटीडी और मैनिफेस्ट नहीं करा है। इन केस ऑफ Amazon, the RTD is also marked as soon as we confirm the orders. So this is how it works. The confirm means for every marketplace. It's a very very crucial step. तो कंफर्म हमको ऑर्डर्स कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें पिकर असाइन हो चुका है, तो मैं अभी आपको मोबाइल ऐप की स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 पिक लिस्ट असाइन हुई है जो मैंने अभी पिकर असाइन किया था। ठीक है, फिर मैं ये पिक लिस्ट ओपन करूंगा और अब हम जाएंगे वेयर हाउस की साइड, यहाँ पे हम पिकिंग करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये 2 बैच दिखा रहा है, T1001, 023 एंड 003। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैच के पास जाऊंगा, तो ये मेरी बैच है, तो मैं इसको स्कैन करूंगा। यू मीन टू से बिन? यस, देयर इज सम इशू। ओके, सो इसमें ये मेरे से पूछ रहा है मुझे एसक्यू पिक करना है 1013 301 XL, और उसका इसमें मुझे सीरियल नंबर भी असाइन करके दिया हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका जो सीरियल नंबर है मैं वो नहीं देखूंगा, मैं एसक्यू देखूंगा। तो सिस्टम क्या करेगा, अगर आपने कोई दूसरा सीरियल सेम एसक्यू का भी पिक करा है तो उसको वो स्वैप कर देगा। ठीक है, मैं एक सीरियल नंबर स्कैन कर रहा हूँ जिसका सीरियल नंबर है 7139। कुछ अगर एक बार स्क्रीन पे दिखा सकते हो, तो इसका सीरियल नंबर आप देखोगे तो इसका सीरियल नंबर है 7139, और मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है 7138। तो मैं इसको एक बार स्कैन करने का डिवाइस से ट्राई करता हूँ। तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और वो पिक लिस्ट में ऐड हो गया, तो मैं इसको यहाँ से पिक कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये मेरे को बोल रहा है बिन नंबर ST001 023 एंड 004 में जाना है। तो ये मेरी बिन है, तो इस बिन को स्कैन करेंगे, और इसमें मेरे से बोल रहा है मेरे को पिक करना है 1013 401 3XL। ठीक है, तो मैं इसका एक एसक्यू पिक करूंगा और इसको भी सेम स्कैन करूंगा यहाँ पे सिस्टम पे। लाइट, तो शाहरुख मोबाइल फोन यूज कर रहा है पिकिंग करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद द मोबाइल फोन, that the camera takes a little bit of more time in scanning the barcode. This is why HST devices are recommended to be used for picking and put away and all the things. आपकी स्पीड बढ़ जाती है। इसमें जो ये स्वैपिंग के बारे में बात करी है, देयर आर 2 important points here. If you scan a wrong bin, if you scan some other bin, system will not allow you to pick it from the other bin. If you are scanning a serial number into the same bin which system is suggesting, then तो swap हो जाएगा. If not,
then what will happen is system will say, no, you cannot pick it from the other bin. You have to pick it from the bin which I told you. So the reason for this is that maybe there are 100 serial numbers into that bin, और जब आपने उस serial number को जो आप सिस्टम दिखा रहा है वो नीचे पड़ा है, नीचे दबा हुआ पड़ा है, आपने ऊपर वाला सीरियल नंबर उठा लिया उसी सेम एसक्यू का, सिस्टम विल स्वैप इट राइट देयर एंड राइट देयर इटसेल्फ, allowing you to pick any serial number of that SKU from the specified bin. ठीक है जी, आगे चलते हैं. ठीक है, तो अभी ये दोनों बिन का कलर ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये बिन पिक कर चुके हैं, और नीचे मेरे को बोल रहा है व्यू ऑर्डर टू कंफर्म. तो अभी ऑर्डर क्या है, अभी आप क्या करते होगे कि ऑर्डर पिक लिस्ट बैच को ओपन करके फिर कंफर्म करते हो. यहाँ पे क्या है, जैसे एक बिन के एक पिक लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम उसने पिक करे वो वहीं पे वेयर हाउस के अंदर ही उसको कंफर्म कर सकता है. जब तक वो आइटम्स लेके आपके पैकिंग स्टेशन पे आएगा उसके लेबल और इनवॉइस रेडी हो चुके होंगे. ठीक है, तो मैं ये व्यू ऑर्डर टू कंफर्म पे क्लिक करूंगा एंड स्लाइड राइट टू कंफर्म. ठीक है, तो ये वाली मेरी पिक लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है. अभी मेरे यहाँ पर पास एक और पिक लिस्ट है जो पेंडिंग है, तो अब मैं इसको स्कैन करूंगा. तो इसमें भी मेरे को बोल रहे हैं रॉन्ग बिन स्कैन कीजिएगा पहले, और सेम बिन स्कैन करने के बाद रॉन्ग सीरियल स्कैन कीजिएगा. ठीक है. ये मेरे को बोल रहा है प्लीज स्कैन द वैलिड बिन, तो मैं गलत बिन के को स्कैन करके मैं कोई भी आइटम पिक नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, अभी मैं करेक्ट बिन स्कैन करता हूँ. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इनवैलिड सीरियल स्कैन करके दिखा देता हूँ आपको. इसमें 103 लार्ज 301. ठीक है, ये आइटम एक्चुअली पिक लिस्ट में नहीं है, तो मैं इसको स्कैन करता हूँ. ये बोल रहा है आइटम नॉट अवेलेबल टू स्वैप, मतलब ये आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है पिक लिस्ट में, तो इसको स्वैप नहीं करेगा. ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेक्ट वाला सीरियल स्कैन कर रहे हैं. तो इसने ये एक आइटम पिक कर लिया. अब ये देखिए यहाँ पे वन बाय ग्रीन में दिख रहा होगा 1/1, मतलब एक आपका पिक हो चुका है. अभी ऊपर वाला पिक नहीं हुआ है इसलिए उसको 0/1 दिखा रहा है. 108. ठीक है, तो ये भी दोनों पिक हो चुके हैं. यहाँ पे व्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे एंड स्लाइड राइट टू कंफर्म. तो अब आपके ये आइटम पिक हो चुके हैं. अब हम मूव करेंगे पैकिंग स्टेशन की तरफ. चलो. ठीक है, तो अभी ये दोनों आइटम अनकंफर्म में थे. अभी मैं जब स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे, क्योंकि मैंने कंफर्म ऐप से ही कर दिया था, तो यहाँ पे ये मुझे कंफर्म दिखाएगा. ठीक है, तो ये दोनों जो अभी बैच क्रिएट हुए थे उसमें ऑर्डर चला गया रेडी फॉर प्रिंट में. ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जो भी मेरी पिकलिस्ट आईडी है, पिकलिस्ट आईडी को मैं ऑर्डर्स में जाऊंगा, प्रोसेस ऑर्डर्स में जाऊंगा, और यहाँ से पिकलिस्ट आईडी को मैं ओपन कर लूंगा. फिर मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट स्कैनिंग पे. अब ये मेरे को बोल रहा है सीरियल नंबर स्कैन करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग स्टेशन इनेबल है इसलिए सीरियल नंबर स्कैन करने के लिए बोल रहा है. अगर आप प्रीवियस टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी बल्क में प्रिंट करने के लिए ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि आपका HST और पैकिंग स्टेशन दोनों चीजें इनेबल्ड हैं. सो यहाँ पर एक और चीज हमको ध्यान देनी है कि पैकिंग स्टेशन पर SKU स्कैन करके ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा, सीरियल स्कैन करके ही ऑर्डर प्रोसेस होगा. एंड शाहरुख, इफ वी हैव, do we have same multiple pieces of same item here in यस. two orders? यस. ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे कि हमने एक पिक लिस्ट के अंदर अगर दो आइटम है तो वो आइटम किस तरीके से स्वैप हो रहे हैं. ठीक है.
अब मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा सीरियल नंबर। मे बी हमने अभी इसमें यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं तो ये सीरियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, क्योंकि ये मे बी किसी और बैच का है। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर आप किसी दूसरे बैच से पिक करते हो तो आपको वो तो आगे मूव नहीं करने देगा, आपको करेक्ट सीरियल नंबर स्कैन करना है। ठीक है, अभी मैंने ये एक पीस स्कैन कर लिया है यहाँ पे। अभी मेरे को ये प्रिंट करने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक और आइटम है जो कि अभी स्कैन नहीं हुआ है। इसमें बोल रहा है 1 स्कैन हुआ है और ये एक पेंडिंग में है। तो आपको इस सेम आइटम, सेम ऑर्डर में एक और आइटम है, वो भी पिक करना है। ठीक है, अब मैं इसमें अपना जो मेरा इसका जो दूसरा आइटम है वो भी मैं इसमें स्कैन करता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कमांड चलेगी है प्रिंटर पे, और यहाँ से मेरे को लेबल प्रिंट हो गया और इनवॉइस भी प्रिंट होगा। तो अभी मेरे पास जो ऑर्डर जो मैंने अभी स्कैन किया है उसमें 2 आइटम है, तो मेरे पास इसके आइटम भी आ गया है और इनवॉइस भी आ गया है और उसका शिपिंग लेवल भी आ गया है मेरे पास। तो इसको, इस वाले पैकेट को हम पैक कर देंगे इस ऑर्डर को, क्योंकि इस बैच में एक ही ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे दूसरे बैच को। सेम प्रोसेस ऑर्डर्स में जाएंगे, पिक लिस्ट आईडी को यहाँ पे स्कैन करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट स्कैनिंग। अब क्योंकि इस ऑर्डर में एक ही आइटम था तो ये डायरेक्टली कमांड प्रिंटर पे चला गया। तो अब ये वाला आइटम और इसका शिपिंग लेवल पैक होएगा। ऐसे ही जो लास्ट मेरा आइटम बचा है इस बैच में उसको भी मैं स्कैन करूंगा। सेम इसका भी कमांड प्रिंटर पे चला गया। यहाँ तक अभी किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? नो। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम ऑर्डर्स को आरटीडी कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन है। तो बेसिकली आरटीडी उस केस में हमें काम आता है जैसे आपने फ्लिपकार्ट के ऑर्डर प्रोसेस कर लिए, अब आपको उसका रेडी टू डिस्पैच मार्क करना है ताकि वो फ्लिपकार्ट पे पूरा ऑर्डर फुलफिल्ड मार्क हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट लेबल्स, और क्योंकि ऑर्डर्स प्रिंटेड सेक्शंस में है देन आप यहाँ पे ऑर्डर्स को सेलेक्ट करके इसको आरटीडी मार्क कर सकते हैं। तो ऑर्डर आपके, योर ऑर्डर आर रेडी फॉर डिस्पैच। ओके, तो ऑर्डर सारे मूव होके रेडी टू डिस्पैच वाले सेक्शंस में चले जाएंगे। ये सिर्फ मार्केट प्लेस के लिए ही होता है या फिर हम शॉपिफाई वगैरह सबके लिए कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए भी कर सकते हैं। अभी सिस्टम पता है क्या करता है कि अगर आप ये वाला स्टेप स्किप भी करते हो ना, जब आप मैनिफेस्ट जनरेट करते हो और एक जैसे मान लीजिए आपने एक मार्केट शॉपिफाई का एक कैरियर सेलेक्ट किया, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है उसको अपने आरटीडी में। ओके। अगर आप ये स्टेप स्किप करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बैक एंड में कर देता है। हाँ, हमारा क्योंकि ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये वाला स्टेप अभी देखा मैंने। हाँ, ये बेसिकली ये स्टेप हम उसके लिए करते हैं जब
फ्लिपकार्ट के केस में क्या होता है कि जनरली हम ऑर्डर को कंफर्म करते हैं तो डायरेक्टली वो पेंडिंग हैंडओवर में मूव हो जाता है, बट कुछ सेलर्स का रिक्वायरमेंट ये रहता है पहले वो पेंडिंग आरटीडी में जाएगा, जब हम उसको बोलेंगे तब वो पेंडिंग हैंडओवर में जाना चाहिए। तो उस टाइम पे ये स्टेप हमारे काम आता है। ओके। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है मैनिफेस्ट जनरेट पिकअप मैनिफेस्ट। तो ये मैं आपको मोबाइल ऐप से शो करूंगा। One second. यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट शिपिंग, जो आपको इनवर्ड और आउटवर्ड वाले सेक्शन में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे को दिखा भी रहा है कि यहाँ पे 4 आइटम्स ऐसे हैं जो आपको शिप करने हैं। तो मैं मैनिफेस्ट के यहाँ पे स्टार्ट शिपिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी मुझसे पूछ रहा है मार्केट प्लेस सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैरियर मेरे पास डिलीवरी है। अब ये मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे आप ट्रैकिंग नंबर स्कैन करो। तो जो भी मेरे जितने भी पैकेट स्कैन हुए हैं ना, उसके ट्रैकिंग नंबर मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 स्कैनिंग से बेनिफिट ये रहता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर एक बैच में 100 आइटम्स आए हैं एंड टीम ने 98 पैक करे हैं, बाय मिस्टेक 2 रह गए। वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे 2 रह गए? वो होंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई, क्योंकि जितने भी आपने पैक करे हैं सिर्फ वही स्कैन करे हैं, और वो जो बचे हुए ऑर्डर हैं वो आपको बैच में रिफ्लेक्ट होंगे आरटीडी वाले सेक्शंस में। गॉट इट? ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, जितने भी मैंने पैकेट पैक करे थे उनको मैं यहाँ पे 1 बाय 1 स्कैन करूंगा। कैमरे में कुछ ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक टिक लग गया है, तो मतलब एक पैकेट यहाँ पे स्कैन हो गया है। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है नॉट ए वैलिड AWB नंबर। ये दूसरा भी पैकेट स्कैन हो गया। सो बेसिकली लोग HT डिवाइसेस यूज करते हैं, कैमरे में यही स्लोनेस का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे चारों के चारों आइटम स्कैन हो चुके हैं। अब नीचे लिख के आ रहा है स्लाइड राइट टू क्रिएट मैनिफेस्ट ऑफ 4 आइटम्स। तो मैं स्लाइड राइट करूंगा और मेरा मैनिफेस्ट जो जनरेट हो जाएगा और वो मैं सिस्टम से डाउनलोड कर पाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो सीरियल नंबर के बारकोड्स लगा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो प्रिंट अ क्यूआर कोड। इजीकॉम से क्यूआर कोड भी प्रिंट हो जाएगा एंड क्यूआर कोड HST डिवाइस है मोबाइल फोन के कैमरा में स्कैन भी हो जाएगा। बारकोड गन के ऊपर क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा, उसके लिए आपको you'll have to buy a 2D barcode gun. So what 2D barcode gun does is it has capability to scan QR codes. That way you can very easily utilize QR codes in a smaller form of stickers also to paste on your product. बारकोड ज्यादा बड़ा हो गया है, कुछ हो गया तो हमको उतना बड़ा करने स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। वी कैन हैव अ स्मॉल स्क्वायर टाइप QR कोड आल्सो पेस्टेड विद द सीरियल नंबर ऑन द प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने जो मैनिफेस्ट अभी ऐप से क्रिएट करा था वो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट सेक्शंस में देख सकता हूँ। ये अभी 3:06 पे क्रिएट हुआ है और उसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा और इसको मैं प्रिंट कर लूंगा। तो ये जो मैनिफेस्ट है ये आपके जो भी कोरियर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो साइन करके आपको आपके आइटम पिक करके लेकर जाते हैं, करेक्ट? ठीक है, तो ये मेरे जितने भी आइटम थे ये मेरे पैक हो चुके हैं। अगर मान लीजिए आपने ये मैनिफेस्ट आपको दोबारा देखना है ये कहाँ पे सेव हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्पैच हिस्ट्री। यहाँ पे आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, मैं आज की डेट सेलेक्ट करके इसको सबमिट करता हूँ।
तो यहाँ पे मुझे 2 मैनिफेस्ट दिख रहे हैं, जो मैंने अभी बिल्कुल अभी क्रिएट किया है और एक ये जो मैंने सुबह क्रिएट करा था। ठीक है, इनकेस अगर मान लीजिए आपको ये लेबल्स दोबारा चाहिए, दोबारा रीप्रिंट करने हैं, तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन हम देते हैं रीप्रिंट करने का। और आप इनकेस आपको मैनिफेस्ट दोबारा प्रिंट करना है तो आप यहाँ से मैनिफेस्ट भी प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अपलोडेड साइंड मैनिफेस्ट, जो कोरियर एग्जीक्यूटिव मैनिफेस्ट को साइन करता है उसको आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। ओके। हाँ जी, सो हम मैनिफेस्ट तक पहुंच गए, हमने मैनिफेस्ट क्रिएट कर लिया है। अब शाहरुख, वी ऑल्सो हैव टू कवर द पॉइंट्स ऑफ cancellation, how the cancellation and cancellation scenarios work. एंड जो कैंसिलेशन, कोई अगर ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, अभी जैसे आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, तो ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद, मैनिफेस्ट बनने के बाद अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसको रिटर्न कैसे करेंगे, हम पंच करेंगे और वापसी शेल्फ में कैसे रखेंगे। एंड ऑर्डर मैनिफेस्ट बनने से पहले अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैसे हम कैंसिलेशन पुट अवे के थ्रू लेकर जाएंगे आगे। ठीक है, इसमें पहले अभी मेरे यहाँ पे मैनिफेस्ट क्रिएट हो गए हैं। अगर इनकेस अगर मान लीजिए अब मैंने मैनिफेस्ट बनाने के बाद अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो वो हम यहाँ पे सिस्टम में रिटर्न मार्क करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न मार्क करने का फैसिलिटी हमारे मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है। तो पहले मैं जो आपका जो कैंसिलेशन है वो आफ्टर मैनिफेस्ट वाला केस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे मोबाइल ऐप की स्क्रीन है। यहाँ पे एक ऑप्शन है पेंडिंग रिटर्न्स। जब मैं पेंडिंग रिटर्न पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये क्राइटेरिया है: ऑर्डर नंबर, फॉरवर्ड एडब्ल्यूबी नंबर, रिवर्स नंबर, सब ऑर्डर नंबर, गेट पास नंबर और सीरियल नंबर। ठीक है, तो अभी मेरे अब क्योंकि ये मेरा अभी मैनिफेस्ट होने के बाद कैंसिल हुआ है तो मेरे पास फॉरवर्ड एडब्ल्यूबी नंबर है। तो मैं एक बार फॉरवर्ड एडब्ल्यूबी नंबर को स्कैन करता हूँ और एक रिटर्न प्रोसेस करता हूँ। इसको मैंने स्कैन कर लिया। ठीक है, अब इसमें मेरे को बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे 2 आइटम है जिसको आपको रिटर्न मार्क करना है। तो अब ये बोल रहा है सेलेक्ट और स्कैन द सीरियल नंबर। तो जो मेरा पैकेट, जो मेरे को पास जो रिटर्न रिसीव हुआ है उसके पैकेट का मुझे सीरियल नंबर स्कैन करना है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर स्कैन करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे को बोल रहा है कि मुझे इसका क्या ये मेरे को गुड रिसीव हुआ है, डैमेज रिसीव हुआ है, रिपेयर रिसीव हुआ है, फ्रॉड रिसीव हुआ है। क्योंकि अभी ये मेरा मैनिफेस्ट के बाद कैंसिल ही हो गया, ये आइटम गुड है तो मैं इसको गुड मार्क कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें देखिए नीचे दिखा भी रहा है गुड के आगे 1, क्योंकि एक अभी मैंने सिर्फ एक सिंगल स्कैन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी स्कैन करता हूँ। ठीक है, सेम इसमें भी मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को इसका गुड करना है, डैमेज करना है, रिपेयर करना है। तो मैं इसको यहाँ पे भी गुड मार्क कर दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। अभी मेरे को पूछ रहे हैं कि आप कुछ रिटर्न रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप कुछ यहाँ पे रिमार्क भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर को, कैंसल ऑर्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ और स्लाइड राइट टू स्कैन्ड आइटम्स। ठीक है, तो इसने ये 2 आइटम्स रिटर्न मार्क कर दिए हैं। अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरे को ये देखो पुट अवे में दिखाएगा कि मेरे को यहाँ से रिटर्न पुट अवे में इसको स्कैन करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है पहले आप एक बिन स्कैन करो और उसको पुट अवे कर दो। तो यहाँ पे मैं एक बिन स्कैन करूंगा। ठीक है, अब ये मेरे को बोल रहा है स्कैन सीरियल, तो यहाँ पे एक सीरियल स्कैन कर दो। ठीक है, ये एक आइटम का पुट अवे सक्सेसफुल हो गया है, तो मैं इसको उसी बिन में ही रख दूंगा। क्योंकि मेरा कंटिन्यूअस मोड इनेबल है, तो ये मेरे को बोल रहा है कि आप दूसरा पीस भी स्कैन कीजिए। ठीक है, तो मेरे जो भी दोनों मैंने रिटर्न मार्क किए थे वो दोनों कैंसिल वो पुट अवे हो गए हैं। और फिर अभी जब मेरा पुट अवे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा, मेरा पुट अवे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और ये इन्वेंट्री वापस से लाइव हो जाएगी सिस्टम में। ये इस रिटर्न प्रोसेस और रिटर्न पुट अवे में किसी को कोई डाउट है? So अभी आप लोग who all are here, how many of you are processing your orders this way जो शाहरुख ने बताया, या कोई और तरीके से आप अपने ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, या कुछ डिफरेंट आपको ऑप्शंस या डिफरेंट इश्यूज क्या आ रहे हैं वो शेयर कीजिए। Guys from Planet Padux, are you processing orders like this only या कुछ फर्क है? नहीं, हम लोग ऐसे B2B प्रोसेस करते हैं। Yeah, of course. B2. The B2B rates are obviously going to be different. Okay, ठीक है। Isaac Fragrances, I'm sure you must be processing your orders from the web as of today, right? Isaac Fragrances, हेलो, hi. यस, तो अभी आप ऑर्डर्स इसी तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं या वेब से कर रहे हैं? नो, ऐसे अभी हम लोग स्कैन नहीं करते, वी आर डूइंग इट इन बल्क, नॉट बाय Bulk. स्कैन। हाँ, तो Yes. आपको मूव करना चाहिए अब स्कैन मोड के ऊपर। या तो आप ईएन स्कैन करके ऑर्डर प्रोसेस करें, या आप सीरियलाइज की तरफ मूव करें। उससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी आउटवर्ड में बढ़ेगी। सी गाइस, if you this is for everyone, if you use this scanning method of processing the orders, you can be 100% sure that कस्टमर को राइट प्रोडक्ट जा रहा है, राइट क्वांटिटी जा रही है, गलत एसक्यू या गलत क्वांटिटी नहीं जा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए, गलत पैकिंग और गलत सामान ना जाए। सेकेंडली, यहाँ पर यू नीड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर एक एक्सपीरियंस पर्सन नहीं चाहिए। A person who just knows how to process the orders can also process your orders. But when you are doing bulk packing or you are doing it from web, in that case you need a person who knows your product, उसको पता है इसको क्या कहते हैं, कस्टमर ने क्या मांगा ऑर्डर में और क्या भेजना है। ठीक है जी। पीपल फ्रॉम कॉटी, आप लोग भी बल्क प्रिंटिंग कर रहे होंगे। कॉटी से कौन है हमारे साथ? दायम, शायद आप कॉटी से हैं, राइट? हाँ जी सर। हाँ जी, तो अभी तो आपके यहाँ बल्क इनवॉइस और बल्क लेबल प्रिंट करके हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। नहीं सर, वो सिंगल एक स्कैन करते हैं और सिंगल एक print करते स्कैन हैं। एसक्यू करके कर रहे हैं, राइट? हाँ जी हाँ जी। ग्रेट, ठीक है। तो आप लोग के शुरू हो गया है। अब जब जैसे आपके ई कार्ट में प्रोडक्ट जा रहे हैं तो वहां इसी तरीके से प्रोसेसिंग होती है। एचएसटी डिवाइस से पिकिंग होने के बाद सिस्टम से प्रोसेस सीरियल नंबर स्कैन करके करते हैं। ठीक है, देखिए हमने कल भी हाँ जी बोलिए, नाम कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर। ठीक है, ग्रेट।
देखिए कैंसिलेशन सिनेरियोज हमने डिस्कस करे। अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है मैनिफेस्ट बनाने के बाद, तो वो रिटर्न पुट अवे से वापसी जाएगा रिटर्न मार्क करने के बाद। बट अगर मैनिफेस्ट बनाने से पहले कैंसिल हो गया है, देन शाहरुख हमको उसको कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो पुट अवे में आ जाएगा, राइट? कैंसिलेशन पुट अवे में डायरेक्ट पुट अवे में आ जाएगा, एंड यू डिड नॉट डू एनी एंट्री फॉर मार्किंग रिटर्न और एनीथिंग. Like I said yesterday, this is a very, very important part that you have to put away your return, your cancellation pieces as well. For put away हमेशा आपका कोशिश रहना चाहिए 0 रहे, जो यहाँ पर अभी शाहरुख की स्क्रीन पर 1 दिखाई दे रहा है. ठीक है जी. And so we have covered how to pick material, how to order, scan and pack them, how to mark them RTD, how to mark the manifest and cancellation scenarios. Okay, so I think we'll be wrapping up this session today at this point only, for the reason कि मैं B2C और B2B को mix नहीं करना चाहता. लोगों को confusion हो जाता है as per my experience of how B2C and B2B orders are getting processed. So we will wrap up the session, today's session, up till here only. I am open for any questions based on today's session or from previous sessions also. Shahrukh, anything else which we have to show related to order processing, B2C? No sir, that's all. That's all. Great. Any questions, guys? निखिल, I have a question. जैसे कि अभी हमें ऑर्डर पिक हुआ है सम नंबर सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 का, ठीक है जी. एक लोकेशन पे, और हमने वही लोकेशन से दूसरे सीरियल नंबर को पिक किया. हाँ. तो इसमें जो फर्स्ट वाला रहेगा वो वापस से अवेलेबल मार्क हो जाएगा, और जो सेकंड वाला है वो सेल मार्क होगा, करेक्ट? यस, ऑटोमेटिकली जब आपने पिक करा ना सेम बिन के अंदर से, तो वो पहले वाला सीरियल नंबर रिलीज हो जाएगा, अवेलेबल मार्क हो जाएगा, और जो आपने पिक करा है वो पिक्ड मार्क हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें ऐसा ये इश्यू नहीं आएगा जैसे कि हमारा 1 2 3 था, फिर 3 4 5 था, तो मतलब जो न्यू हमारा सीरियल ऐड हुआ है, जैसे न्यू इन्वेंटरी ऐड हुई है, हमने वो पिक कर लिया, तो प्रीवियस तो पेंडिंग ही रह जाएगा ना फिर से. देखिए, सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन होता है कि स्ट्रिक्ट फीफो के लिए है. स्ट्रिक्ट फीफो का मतलब है कि आपने सिस्टम ने जो असाइन करा आपको वही पिक करके लाना है. बट होता क्या, वेयर हाउसेस के अंदर बिन के अंदर 100 पीसेज रखे हैं, 50 पीस रखे हैं, अपैरल्स के अंदर और ज्यादा पीसेज रखे होते हैं, तो उस केस में पिकिंग करने में टाइम लग जाता है. अब ये एक मैनुअल एक्टिविटी होती है जो वेयरहाउस सुपरवाइजर है या वेयरहाउस मैनेजर है, वो अपने इन्वेंटरी की एजिंग देखे और जो पुराना मटेरियल है जो बिन में नीचे दबा हुआ रह गया है उसको उठा के ऊपर मैनुअली करवा दे. या फिर आपको स्ट्रिक्ट फीफो करवाने के लिए आपको सेटिंग इनेबल करवानी पड़ेगी, नहीं जो सिस्टम ने 1 2 3 कहा है तो 1 2 3 ही उठा के लाओ, भले तुमको सारा बिन जो है उल्टा करना पड़े. ओके, तो मतलब ये हमें या तो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देना होगा, जो सीरियल नंबर लगा है वही आपको पिक करना है. हाँ, वो आप सिस्टम से भी कंस्ट्रेंट लगवा सकते हैं, पर सिस्टम में वो कैसे होगा? वो अगर करवाना है तो आप शाहरुख, हम उसको टेक्स्ट से बोल के करवा सकते हैं, किसी भी राज्य में है. हाँ, लेकिन सर उसमें ना प्रॉब्लम ये रहती है कि बिल्कुल एट लास्ट मोमेंट पे अगर वो आपको आइटम नहीं मिल रहा है तो फिर वो आप कैसे भी कंफर्म नहीं कर सकते हो, सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा कंफर्म. बट सीरियलाइजेशन का मेन प्रोसेस तो यही है ना कि जो हमारा ओल्ड स्टॉक है पहले वो पिक हो, देन फिर जो न्यू इनवर्ड है उसका. फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पिकर्स को बोले कि जो स्क्रीन पर लिखे आ रहा है तुमको वही उठा के लाना है. क्योंकि क्या होगा कि अगर उनको हम सिस्टम में लॉक लगवा दिया हमने, तो जैसे शाहरुख कह रहे हैं लास्ट मोमेंट के ऊपर कभी कभी ऑर्डर ब्रीच होने का फिर चांसेस रह जाते हैं अगर हमारे टाइम से नहीं हुए पिकिंग. तो आप ट्राई कीजिए कि लोगों को बोलें कि आपके जो सिस्टम में आ रहा है वही उठा के लाना है. आपको लगता है कि लोग नहीं सुन रहे हैं, ये तो बिना लॉक करे मानेंगे ही नहीं, तो फिर लॉक लगवा देना. ठीक है, ये मुझे इसका प्रोसेस खाली एक बार ही बता देना ना, ये लॉक कैसा करवाएंगे? बैकएंड से लॉक लगेगा, यूआई में ऑप्शन नहीं है वो. बैकएंड से लॉक लगेगा.
शाहरुख, आप समझाइए, एक्सप्लेन कर पाओगे मतलब? हाँ, तो बेसिकली बस मुझे एक आपको ईमेल इनिशिएट करना है, उसके बाद हम टैग से बोल के लॉक लगवा देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। Great. Okay, guys. So I think we'll wrap up today's session. I hope you learned one or two new things in order processing as well today. I really appreciate you coming and joining the session for another day. I think B2B के अंदर आपको डिटेल में कल हम लोग बैठेंगे आपके साथ और we'll be going through the new and old B2B module both and taking it forward from there. Have a good day ahead. Thank you.